हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज सोनिया कौशिक और हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। Yes students, this chapter is very important for CBSE as well as for NEET point of view, so listen it carefully. Today is lecture number 1 and we are going to start the chapter. So before starting the chapter, what topics we will discuss today? We will discuss a basic introduction about microbes, then we will talk about shapes of microbes, and basically we will discuss today microbes in household products. So my dear students, as we have done the chapter human health and disease, and in that chapter we have done कि how the microorganisms act as pathogens or disease causing agents that are harmful for us. ठीक है, तो हम कह सकते हैं, और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम करेंगे we will go for the positive aspects of the use of microbes for human welfare. So as far as microbes are concerned, microbes यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माय डियर स्टूडेंट्स, microorganism may be our friends and may be our foe, that means enemy. ठीक है, देखिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं, सो दैट आर called foe or enemy, but if they are helpful, so then we will called as friends. हम उसको friends कहेंगे students. और इस chapters में we are going to discuss this part, positive aspects of microbes, not the negative. Negative part we have discussed in human health and disease, that what type of different microorganisms that are related to that are causative agent of different disease. ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइक्रोब्स में हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट्स विच ऑर्गेनिज्म विल कम? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, and viruses. Viruses are acellular. They are connecting a link between living and non-living, but they cannot multiply without live cell. ठीक है, without a living cell. And viroids and prions. Prions are infectious agents that are made up of proteins. These are infectious agents that are smaller than viruses and they only have nucleic acids in them. ठीक है, viruses के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? viruses के अंदर प्रोटीन कोट होगा, प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल इसमें कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी DNA. ऑलराइट, आपने 11th क्लास में किया, एंड दैट मे बी RNA. चलिए, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, वेयर दे आर प्रेजेंट, सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है स्टूडेंट हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट है. दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल. एयर, वाटर, सॉइल सब जगह है. इवन इन थर्मल वेंट्स जहाँ पे टेम्परेचर कितना है, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं स्टूडेंट थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. ठीक है, इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया. दिस इज ऑल्सो आर्के बैक्टीरिया दैट लिव्स इन एक्सट्रीम कंडीशन. हाई एसिडिक कंडीशन में होंगे तो वी विल कॉल देम एसिडोफाइल्स. हाई टेम्परेचर एंड एसिड दोनों में एक साथ है तो थर्मो एसिडोफाइल. इफ दे आर हैविंग in salty condition they are present, so we will call that halophiles. If they are present in permafrost area जहाँ हमेशा आइस ही रहती है, so in that case we will call them this saccharophilic bacteria. ठीक है, so different bacteria can be named on the basis of different type of environment they are present. So my dear students, these microbes, if we talk about the study of microbes, so study of microorganisms is called microbiology. And who is father of microbiology? Louis Pasteur. लुइस पाश्चर को स्टूडेंट्स फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है. एंड ही ऑल्सो गिव टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज. ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या कहती है स्टूडेंट? दैट एवरी डिजीज इज कॉज्ड बाय एनी पैथोजन. किसी ना किसी द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन. तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहती है कि फॉर एवरी डिजीज देयर इज अ स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट.
specific, that may be bacteria, that may be fungi, that may be protozoan, viruses, all that. Next he gave another concept, pasteurization. What is pasteurization, students? Pasteurization, have you ever heard that how we can make safe to our milk? हम अपने मिल्क को कैसे सेफ बना सकते हैं फॉर कंजप्शन, फॉर ड्रिंकिंग? सो वी कैन मेक वी विल यूज टू हैव टू बॉयल द मिल्क. ठीक है, हम जनरली वी बॉयल द मिल्क टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द मिल्क. लेकिन अगर उसको बिना बॉइलिंग के अगर हाई रेडिएशन से कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर 30 मिनट्स, और ठीक है दैट मे बी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, दैट मे बी लो फ्रीक्वेंसी फॉर मोर टाइम, सो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए 25 to 30 मिनट्स के लिए, और हाई रेडिएशंस दे आर यू कैन से पास थ्रू द मिल्क, एंड दैट टाइप ऑफ यू कैन से दैट टाइप ऑफ killing of the microbes present, harmful microbes present in the milk or any other you can say liquid substances, that is called pasteurization. So this method is used in case of packed milk and all. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे लुइस पास्चर ने. एंड ही ऑल्सो गिव अ कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक माइक्रोब्स के अंदर. ये स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स कैन बी एरोबिक, दे मे बी एनारोबिक. ये ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन और दे कैन रिक्वायर ऑक्सीजन एज वेल. ठीक है, दोनों कैटेगरीज के. अब अगर दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, अगर वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन के बिना नहीं, तो दैट मे बी ऑब्लिगेट एरोब. ठीक है, और अगर बिल्कुल ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए, दैट मे बी ऑब्लिगेट एनारोब. और फैकल्टेटिव का मतलब है इफ़ दे कैन सर्वाइव और दे मे नॉट सर्वाइव. ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर वो रह सकते हैं तो उनको हम फैकल्टेटिव कैटेगरी में डालेंगे, दैट मे बी एरोबिक, एनारोबिक. और अगर वो एरोबिक है, ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, दैट मे बी ऑब्लिगेट. ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था. माइक्रोब्स क्या हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, दे में भी बैक्टीरिया, फंजाई, और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो हमने पढ़ी है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन और वायरसेस से होती हैं. लेकिन इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करें स्टूडेंट्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए. ह्यूमन तो वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखिए स्टूडेंट्स, not only in household product, we are using microbes as a biofertilizer, as a bioinsecticides and biopesticide also. So in industrial point of view, we are making wine and beer and different industrial products with the help of these microbes. And not only household products or in industrial level, we are having some bioactive molecules that may be immunosuppressive agent, that may be anti-clotting factors, or you can say clot busters, that is isolated from or getting from streptokinase, that is clot buster that helps to reduce the number of clots present in the blood vessels, like that. So all that we will do one by one in this chapter, but today our main focus is on microbes in household product. आज हम घर में किस तरीके से क्या प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं. आप बहुत जो है कॉमनली आप घर में सभी लोग यूज़ करते हैं, योगर्ट या कर्ड हम उसको बोल सकते हैं. डो हम जो बनाते हैं इडली डोसे के लिए फर्मेंटेड डो की ज़रूरत रहती है. चीज़ आपको पता है कितने सारे फूड प्रोडक्ट्स है लाइक पिज़्ज़ा एंड ऑल, वी आर यूजिंग चीज़ इन दैट. टोडी ड्रिंक की बात करेंगे, और ईस्ट किस तरीके से यूज़फुल है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे. ईस्ट क्या है स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई. सो आज वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट. So this is all about the basic. If we talk about students growth of microbes, तो बैक्टीरिया की कभी भी साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता है स्टूडेंट. माइक्रोब्स की ग्रोथ को हम कभी भी साइज़ में इंक्रीज़ होता नहीं देख सकते. ऐसा नहीं है कि आज हमें कोई बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं दे रहा तो 1 ईयर के बाद वो दिखाई देगा, ऐसा नहीं है. So if we talk about bacterial division, so that may divide with the help of binary fission. Binary fission से बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, and it takes 16 to 20 minutes for division in bacterial cells. So my dear student, increase in number in case of microbes can be regarded as their growth, can be regarded as their reproduction point of view. Alright, चलिए अब हम बात करते हैं microbes in household products. So first of all we are coming to curd. ठीक है, कर्ड की बात करेंगे. कर्ड हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, कर्ड किससे बनती है, मिल्क के अंदर हम थोड़ा सा कर्ड का पार्ट ऐड कर दे, दैट इज कॉल्ड
इनोकुलम, इनोकुलम भी कह सकते हैं हम उसको, और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, स्टार्टर कल्चर, स्टार्टर कल्चर। हम थोड़ा सा स्टार्टर कल्चर ऐड करें, इनोकुलम ऐड करें, सो मिल्क विल टर्न इनटू, मिल्क विल किसका, स्टार्टर कल्चर, या वो थोड़ा सा अमाउंट हम किसका लेंगे स्टूडेंट, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। इसकी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, सो बेसिकली लैक्टोबैसिलस वी आर यूजिंग, इट विल कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट, कर्ड में। And if we talk about important bacteria, so that is lactobacillus, and it is also called lab, 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 that is lactic acid bacteria। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स आफ्टर फर्मेंटेशन, तो इसको लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट ऑफ कर्ड। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, सोर टेस्ट ऑफ कर्ड। ठीक है, योगर्ट की बात करें स्टूडेंट, योगर्ट की, तो उसमें वी आर यूजिंग पाश्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, पाश्चराइज्ड मिल्क हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, दैट इज़ यू कैन से स्टरलाइज विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन फॉर सम स्पेसिफिक टाइम। तो पाश्चराइज्ड मिल्क हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस तो यूज़ होगा ही, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, लैक्टोबैसिलस तो यूज़ होगा ही, एक और बैक्टीरिया यूज़ हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इट हेल्प्स इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है ना, दूध जम जाता है जब वो कर्ड बनता है, तो इट हेल्प्स इन स्पेसिफिक कर्डलिंग, हेल्प्स इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन की कर्डलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, सो एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन फीमेल वेजाइना ऑल्सो। इट makes the environment acidic, that helps to prevent the growth of opportunistic pathogens in the genital tract of the female vagina, of the females, specifically in vagina. So lactic acid bacteria is also present in females body. चलिए, कर्ड आपको पता लग गया स्टूडेंट्स, कर्ड कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे स्टूडेंट फर्मेंटेड डो की। अगर हम बात करें फर्मेंटेड डो की ज़रूरत कहाँ रहती है स्टूडेंट्स, देखिए ब्रेड बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं डो, या आप इडली के लिए फर्मेंटेड फूड है, इडली या डोसा के लिए। ठीक है, तो इनमें जो स्टूडेंट्स डो के अंदर भी अगर हम बात करें, जो इसमें होल्स होते हैं, होल्स या हम कहें पफीनेस इसके अंदर जो आ जाती है आफ्टर फर्मेंटेशन, दैट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 रिलीज होने की वजह से वो होती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ब्रेड के लिए अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये ईस्ट मैंने अभी आपको बताया था, ईस्ट कैन ऑल्सो बी यूज। ठीक है, इडली और डोसा के लिए हम स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्पीशीज यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं, यूज़ फॉर फर्मेंटेशन। बट इफ़ वी टॉक अबाउट ब्रेड के लिए बात करते हैं स्टूडेंट, ईस्ट यूज़ होती है। कौन सी ईस्ट यूज़ होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, बहुत बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, ईस्ट कौन सी ईस्ट है, नोट करेंगे, सैक्रोमाइसिस सीरीवीसी, सैक्रोमाइसिस सीरीवीसी स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग। ब्रेड या केक बनाने के लिए तो यूज़ हो ही रही है, ये बेकिंग के लिए यूज़ होती है। इसके लिए फ्रूट जूसेस को अल्कोहलिक बेवरेजेस में चेंज करने के लिए भी यूज़ होती है, तो हम इसको ब्रीविंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेकर ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्रीविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू चीज़। चीज़ क्या है स्टूडेंट, देखिए चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। nowadays cheese is you can say extra loaded cheese pizza is favorite for all kids. so cheese की बात करेंगे, very important my dear student. cheese is formed by fermentation of ripened curd.
कर्ड की फर्दर फर्मेंटेशन से क्या बनती है स्टूडेंट, चीज़ बनता है। और यहाँ पे भी लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस यूज़ हो सकता है। कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होगा स्टूडेंट यहाँ पे, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। और कर्डलिंग के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस कैन बी यूज्ड, थर्मोफिलस can be used. So lactobacillus casei, different strains of bacteria can be used here. Now curd, this cheese is important for its various you can say texture and flavors. तो चीज़ के अलग अलग टेक्सचर या अलग अलग फ्लेवर्स हैं जो अलग अलग तरह की माइक्रोब्स को यूज़ करने से आते हैं। स्टूडेंट्स, वी कैन यूज़ डिफरेंट बैक्टीरिया फॉर फर्मेंटेशन, वी कैन यूज़ सम फंजाई स्ट्रेन्स ऑल्सो फॉर फर्मेंटेशन, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ वी कैन सी। Like most common example in case of cheese is, one is Swiss cheese and another one is, this is very important, both are important, this is Roquefort cheese। ठीक है, चलिए one by one we are coming to the topic। Swiss cheese students, it is hard cheese, ठीक है, हार्ड इन नेचर, दिस इज सेमी हार्ड। ठीक है, स्विस चीज में स्टूडेंट्स लार्ज होल्स, ठीक है, लार्ज होल्स होते हैं, क्यों होते हैं, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। CO2 की रिलीज की वजह से इसमें थोड़े बड़े होल्स होते हैं, जनरली ये हार्ड रहते हैं स्टूडेंट्स। विच बैक्टीरिया इज यूज फॉर फर्मेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपिनो बैक्टीरियम, शर्माने, Propinobacterium shermani, very important. This bacteria is used for fermentation and Swiss cheese is found, and this is hard cheese having a specifically large hole. Roquefort cheese is famous for its specific flavor। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट, एंड इट्स कॉस्टली टू, एंड फर्मेंटेड बाय फंजाई। एक फंजाई है स्टूडेंट, विच फंजाई, वेरी इंपॉर्टेंट, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। ठीक है, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फंजाई इज स्पेसिफिकली यूज फॉर दिस। सो डिफरेंट चीज इज प्रेजेंट इन डिफरेंट टेक्सचर्स, फ्लेवर्स यू कैन से, और वेराइटीज। ठीक है, डिफरेंट mozzarella cheese, so different types of cheese are present nowadays in market, so they may be different on the basis of different types of organism used. Now very important topic, toddy. So my dear student, toddy is a fermented drink. Toddy क्या है, very important, this is asked frequently in NEET exam, बार बार ये आता है स्टूडेंट। what is toddy? toddy क्या है, देखिए, fermented drink है ये। फर्मेंटेड ड्रिंक किससे बनती है स्टूडेंट, सैप ऑफ पाम का जो लिक्विड है, पाम का जो सैप है उससे बनती है स्टूडेंट, पाम ट्री के अंदर। एंड दिस इज बेसिकली यूज इन साउथ इंडिया। ठीक है, इट इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप, एंड दिस इज बेसिकली यूज इन साउथ इंडिया। और माय डियर स्टूडेंट्स, अदर फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स, और क्या फूड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, देखिए, फर्मेंटेड फिश या बैम्बू स्टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी फर्मेंटेड, इवन फर्मेंटेड टी लीव्स, अभी आप जो चाय पत्ती घर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो fermented products. So all these types of fermented products can be used, and that is commonly used in our household different purposes like, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, all these things are important for your CBSE as well as for NEET. So these today we have covered our topics. This is your lecture number 1, lecture
1, and in this lecture we have discussed specifically microbes in household products. In our next lecture we will discuss microbes in industrial products. ठीक है, industrial products में किस तरीके से microbes are used for making beverages, for making wine and beer etc., alcoholic beverages, and we will also do the antibiotic production and the use of bioreactors or large fermenters for that. ऑब्वियसली अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लेवल पे, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कर्ड को, या घर में हम लोग कर्ड या चीज़ बना रहे हैं या डो तैयार कर रहे हैं, सो वी आर मेकिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी, बट व्हेन दे हैव टू बी इंडस्ट्रियलाइज, और कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे जब ये चीज़ें तैयार की जाएगी, लाइक बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज है, जैसे अमूल है, ठीक है, या मदर डेयरी है, डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट तरह के, वीटा है, वेरका है, सो ऑल दीज you can say companies, all these are not making that at a small level, they are making all these products at a commercial level, industrial level, so they are using large fermenters for that. In our next video lecture we will discuss what are bioreactors or fermenters and how the process is going on at industrial level, and what are the microbes that helps in production of different products in industries. Alright, so this is okay for today. I hope you like this video, so hit the like button. Goodbye.